Hello, my lovely traders. I hope you all are doing well. Now, today was another amazing trading session in the market. Today we saw a little bit of dullness in the market for the first 1, 2, 3 hours, and after that there was an amazing volatility. हमने उस volatility का पूरा फायदा उठाया और मार्केट के अंदर अच्छा खासा पैसा बनाया. इस वीडियो को हम हर वीडियो की तरह तीन मेजर सेक्शंस में डिवाइड करेंगे. द फर्स्ट सेक्शन इज ऑल अबाउट द लोकल एंड द ग्लोबल इवेंट्स इन द न्यूज दैट अफेक्टेड द मार्केट्स फॉर द डे एंड दैट कैन अफेक्ट द मार्केट्स इन द अपकमिंग वीकली एक्सपायरी. एंड सेकेंडली वील डिस्कस व्हाट हैपेंड इन द मार्केट्स टुडे. हमारे क्या ट्रेड सेटअप्स थे और किस तरीके से हमने उन ट्रेड सेटअप्स को लेकर पैसा बनाया, किन में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उनके पीछे का लॉजिक क्या था, एवरीथिंग वील डिस्कस. एंड थर्डली वील डिस्कस व्हाट कैन हैपन इन द मार्केट्स इन द अपकमिंग trading session, that is tomorrow's trading session on Friday, that is 9th of April. Now we have to as I've been telling you since morning that it's an expiry day and the volatility can be very high, तो cautious होके ट्रेड लेना होगा. exactly वही हुआ. पहले 2 या 3 घंटे पास होने के बाद वोलेटिलिटी बहुत इंक्रीज हो गई. द इंडिया विक्स इज आल्सो शॉट अप एंड उसके बाद आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर स्पेशली बहुत ही वायलेंट मूव्स देखने को मिले. इवन निफ्टी गॉट अ बिट वायलेंट. फाइनली निफ्टी का फाइनली ये वीकली एक्सपायरी भी हो चुका है एंड निफ्टी इज नॉट एबल टू रिक्लेम इट्स 15,000 लेवल. सो वील डिस्कस ऑल अबाउट इट इन दिस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा. पेन पेपर नोटबुक लेके बैठ जाइए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, बिकॉज एवरी सिंगल वीडियो दैट वी पोस्ट, एवरी सिंगल एनालिसिस वीडियो दैट वी पोस्ट इज अ मास्टर क्लास इन इटसेल्फ. बहुत सी चीजें हम डिस्कस करते हैं, लेवल्स डिस्कस करते हैं एंड एज आई हैव बीन टेलिंग यू एवरी सिंगल डे, भाव भगवान छे, levels are God. So if you can respect the levels will give you profits. So this is Utkarsh Bhargav. We are watching Roaring Bulls, the stock market show. So what a beautiful day in the markets today. Let's quickly jump into the video. Let me turn on the screen recording for you. Okay, yes. So we'll quickly talk about how the index behaved for the day. One second, let me open up. Yes, okay. So let's quickly talk about how the index behaved for the day. So as you can see here, there were there were 31 advances and 19 declines in the index. So advance to decline ratio was not very bullish. It was just a little bullish. The Nifty 50 index managed to close just 54 points up. And that's not a very big bullish close. It's just a small mild close for the index on the upside. We'll quickly look at the gainers for the index and the losers for the index. So if you look at the gainers for the index, Nifty metal is shining again. Can you see that? Nifty metal is shining again. Nifty metal लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है. This bull rally is being really, it's really continuing and we have to see till how long this bull rally continues. Other than that, Nifty IT shot up really well. So Nifty IT was again shining and let's quickly look what all Nifty Infra. So Nifty Infra was up and Nifty Reality both were up. So these were the major gainers for the index. Let's quickly look at look which were the losers for the index. So banking sector, Nifty PSU bank index was down by 0.9%. So as you can see, Nifty PSU Bank, Nifty Bank, both were down by, and Nifty Finance, both were down by, all three of them were down by 0.9, 0.6 and 0.3%. So mainly the banking and the finance sector looks weak. अब the point is कि अगर banking और finance sector अगले कुछ दिन तक भी weak दिखता रहा तो निफ्टी के लिए 15,000 का लेवल क्रॉस करना या उसको सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा. उस केस में क्या होगा? उस केस में बेसिकली इंडेक्स के अंदर वोलेटिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी और हम इंडेक्स को 14,500 या 14,450 के लेवल से ऑल द वे अप टू 14,900, 920, 930 तक के लेवल तक मूव करता हुआ देख सकते हैं. इवन इन द अपकमिंग वीकली एक्सपायरी हो सकता है पूरा अप्रैल का मंथ इंडेक्स 15,000 को रिक्लेम शायद ना कर पाए, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर भी काफी वीक दिख रहा है और ये देखने वाली बात है. बैंक्स हैव बीन फॉलिंग फॉर वेरी लॉन्ग एंड दे आर बैक बिलो द 33,000 लेवल. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू वॉच इन द upcoming weekly expiry. Nifty Pharma was also down for the day. So these were the updates for the Nifty 50 index. FII DI data is not out yet, तो उसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं. We'll quickly talk about the post market bites here. So
Today was a perfect example of how much volatile can a weekly expiry become. As I have been saying since morning that morning on Telegram itself मैं आपको अपडेट कर चुका था. जस्ट इन केस आपने अगर अभी तक रेड सर्कल चैनल नहीं ज्वाइन किया हो, सो इट्स जस्ट 999 रुपीज पर मंथ. लेट मी अपडेट यू विद इट एंड यू विल गेट टू लर्न अ लॉट माय फ्रेंड. लाइव ट्रेड सेटअप्स मार्केट में जब मैं आपके साथ शेयर करता हूं, उनके पीछे के लॉजिक शेयर करता हूं, तो उससे बड़ी लर्निंग कुछ भी नहीं हो सकती. बिकॉज द लर्निंग इन द लाइव मार्केट इज द बिगेस्ट लेसन फॉर एवरी इंट्राडे ट्रेडर. अदर देन दैट, मास्टर क्लास जो एक्सक्लूसिव मेंबर्स के लिए आती हैं, उसकी एक्सेस तो आपके पास रहेगी. सो इफ यू वांट टू बिकम अ रेड सर्कल मेंबर, यू आर मोस्ट वेलकम. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. जस्ट इन केस इफ यू वांट टू जॉइन द फ्री टेलीग्राम चैनल एज वेल, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. वहां पे भी डेली लाइव मार्केट के अंदर मैं आपके साथ अपडेटेड चार्ट शेयर करता हूं, जहां पे लाइव मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स आपके लिए मेंशन रहते हैं. सो दैट माइट बिकम रियली हेल्पफुल फॉर यू टू टेक योर ट्रेड्स इन द निफ्टी, इन द बैंक निफ्टी इंडेक्स. Other than that, let's quickly look what else was in the market for the day. So Nifty opened the day at 14,879 and it tried to move up in the first candle. After consolidating in the 50-point range for 2 hours, Nifty started falling and it gained back nearly 100 points to reach till or near 15,000. So it gained back nearly 100 points to reach 15,000, but after this, as I have been saying, there was a huge OI build up at the 15,000 level. 15,000 के लेवल पे बहुत जबरदस्त 88 लाख ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल थे ऑन द कॉल साइड, और प्रॉफिट बुकिंग जैसे ही किक इन हुई, the index fell nearly 165 points and Nifty finally closed the day at 14,873. Nifty is again below 14,900. So that has to be seen. It is not able to regain its strength. देखिए, मेरा कंप्लीट व्यू बुलिश निफ्टी के लिए तब होगा जब निफ्टी मिनिमम एक दिन 15,000 के लेवल के ऊपर स्पेंड कर लेगा. तब मैं कहूंगा कि मैं अब कंप्लीटली बुलिश हूं निफ्टी के ऊपर एज एन इंट्राडे ट्रेडर एज वेल. तब तक हमें वोलेटिलिटी का फायदा उठाकर ही मार्केट से अपना पैसा बनाना होगा. सो निफ्टी एंडेड द डे एट 14,873. दैट वाज 1 सेकेंड, या, सो दैट वाज 54 points or 0.37% up for the day. Nifty metal has been shining. मैं आपसे अभी जस्ट ये बात किया था. Nifty metal once again moved sharply today. The other sector that moved more than 1% was Nifty IT. हमने अभी देख ही लिया है, इंडाइसेस डेटा के ऊपर हमने ये चीज देख ली है. टाटा स्टील एंड JSW स्टील again rallied and those were the two top gainers for the Nifty 50 index. Now मार्केट्स जो स्टार्टिंग के 2 घंटे थे उसमें काफी ज्यादा मैं कहूंगा बोरिंग से थे, और उसके बाद इंटरेस्टिंग मार्केट्स कब हुए, जब सेकेंड हाफ आई और देयर वाज सम रियली गुड न्यूज, देयर वाज सम रियली गुड मूव्स इन द मार्केट आफ्टर दिस एंड देयर वर ह्यूज मूव्स इन द मेटल स्टॉक्स एज वेल. ठीक है, मध्य प्रदेश, आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश बाय द वे. सो मध्य प्रदेश हैज इम्पोज्ड अ टोटल वीकेंड लॉकडाउन along with Mumbai. Now this is worrying and hoping that I'm hoping that similar lockdowns don't go all over the India, all over different places in India. क्योंकि अगर इस तरीके के लॉकडाउन्स हर जगह लगते रहे, देखिए नाइट कर्फ्यू या नाइट लॉकडाउन्स तो इतने सेंसफुल हैं भी नहीं. They are basically for creating a mental thing in amongst the people from the country कि हाँ कोरोना वायरस अभी भी है, एक मेंटल अवेयरनेस, मेंटल अलर्टनेस जगाने के लिए ठीक है. बट रात के लॉकडाउन से आई डोंट थिंक सो अदर देन पब्स और रेस्टोरेंट या थिएटर्स, इनके अलावा और किस चीज से नुकसान होता, दोज वर एक्चुअली ऑलरेडी क्लोज्ड. तो आई डोंट थिंक दैट इज वेरी मच सेंसफुल. बट येस, अगर डे लॉकडाउन की बात सामने आती है और अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंड होते हैं पूरे इंडिया में दूसरी जगहों पर भी, तो इस चीज के चांसेस ज्यादा है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस मार्केट के ऊपर दोबारा कम होगा and we can see a strong consolidation between 14,000 and 15,000 level. 14,000 से नीचे चला जाएगा निफ्टी. अब तो मैं ये नहीं कहूंगा फिलहाल में, क्योंकि कोरोना वायरस का जो एक कंप्लीट एंगल है, इट हैज बीन ऑलरेडी अकाउंटेड बाय द मार्केट इन द प्रीवियस ईयर. तो अब इतना नीचे जाने के चांस तो काफी कम है. बट येस, वी कैन सी निफ्टी कंसोलिडेटिंग बिटवीन 14,000 and 15,000 इफ दीज लॉकडाउन वरी कंटिन्यू. क्योंकि साथ में मार्केट में वैक्सीनेशन की पॉजिटिव न्यूज भी अवेलेबल है. ऐसा नहीं है कि अब दुनिया में पता ही नहीं लोगों की आगे क्या होगा. सो दैट इज समथिंग टू बी वॉच्ड अबाउट. ओके, so Bank Nifty index, Bank Nifty opened the day at 33,181. That was above 33,000 levels. So that was a good level to watch. ऊपर खुला इंडेक्स और वहां से immediately, but the index fell 400 points till noon and then reversed once again to go above 33,200 level. मैं आपको क्या बता रहा हूं, वोलेटिलिटी बहुत हाई थी. 33,181 के भी ऊपर निकल गया, जहां इंडेक्स खुला था वहां से भी ऊपर निकल गया. बट 1:30 PM के बाद just like Nifty, complete profit booking kicked in and
Bank Nifty almost lost all the rally that it did for the day, and it closed down by 208 points or 0.63% down for the day. So Nifty was although up 53-54 points up for the day, but Bank Nifty closed negative. So Bank Nifty is showing lesser strength. Bank Nifty seems more bearish. हमको इस चीज पे ध्यान रखना होगा क्योंकि बैंक निफ्टी इज वन ऑफ द मेजर मूविंग फैक्टर फॉर निफ्टी. जब तक बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं आती है, वी कैन से दैट निफ्टी के लिए 15,000 का लेवल क्रॉस करना थोड़ा कठिन रहेगा. सो वी हैव टू वेट एंड वॉच एंड हैव अ क्लोज लुक एट द बैंक निफ्टी इंडेक्स एज ऑफ नाउ एज एन इंट्राडे ट्रेडर. नाउ निफ्टी हैज क्लोज्ड एट समवॉट द सेम रेंज एज द लास्ट फ्राइडे एंड इट इज अगेन अनेबल टू क्लोज अबव 14,900 लेवल्स. अगर बैंक्स में मोमेंटम नहीं आता है तो हम निफ्टी को कल भी गिरता हुआ देख सकते हैं. Again, the major support would come at 14,500, 14,550 levels. वहां तक हम इंडेक्स को वापस गिरता हुआ देख सकते हैं. बट लाइव मार्केट में मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर सारे लेवल्स अपडेट करूंगा जैसे जैसे हम ट्रेड लेंगे. यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यूरोपियन मार्केट्स आर करेंटली फ्लैट बट इन ग्रीन, सो दे आर मार्जिनली अप. आई थिंक 12-13 पॉइंट्स अप, सो मोस्टली फ्लैट बट यस मार्जिनली इन ग्रीन. यूएस मार्केट्स की बात करें, यूएस मार्केट्स हैव मूव्ड सिग्निफिकेंटली हायर इन पास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस ड्यू टू द पॉजिटिव यूएस जॉब्स डेटा, ड्यू टू द स्टिमुलस पैकेज बीइंग टॉक्ड अबाउट. इन सब चीजों के कारण यूएस मार्केट अप गया है. बट अब जो थोड़ा सा आपको एक कंसोलिडेशन दिख रहा है यूएस मार्केट में, या ग्लोबल क्यूज जिसको हम कहते हैं, बेसिकली ग्लोबल क्यूज मेजरली रिफ्लेक्ट फ्रॉम द यूएस मार्केट. तो जो कंसोलिडेशन दिख रहा है दैट इज अंडरस्टूड, क्योंकि इतना ज्यादा यूएस मार्केट मूव कर चुका है. डाउ जोन्स हैड हिट ऑल टाइम हाई अगेन. तो थोड़ा कंसोलिडेशन है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है, एंड दैट्स व्हाट हैपनिंग इन द यूएस मार्केट. सो नॉट अ बिग डील. एंड माय लॉन्ग टर्म व्यू ऑन द इंडेक्स, माय लॉन्ग टर्म व्यू ऑन द मार्केट इज स्टिल बुलिश माय फ्रेंड. ओके, वी आर सिटिंग इन अ बुल मार्केट, डू नॉट फॉरगेट दैट. एंड बुल मार्केट, एवरी बुल मार्केट करेक्ट्स. कोई भी बुल मार्केट कभी भी ऐसा सीधा चलता नहीं चला जाता है, ऊपर नहीं निकल जाता है. एवरी बुल मार्केट करेक्ट्स एंड कंसोलिडेट्स. नाउ इफ यू लुक क्लोजली, तकरीबन अक्टूबर 2020 के बाद से जो बुल रन शुरू हुई थी वो जनवरी फरवरी में जाके हॉल्ट करी है. तो ये जो बुल रन इतने महीनों में आई है, 3 से 4 महीने में जो बुल रन आई है, इस बुल रन का करेक्शन और कंसोलिडेशन पीरियड जो है हम इसको अभी देख रहे हैं. सो डोंट अज्यूम दैट द मार्केट आर गोइंग टू फॉल डाउन फ्लैट एंड द मार्केट्स आर गोइंग टू फॉल बिलो 10,000 लेवल्स. ऐसा नहीं होने वाला है. जो होने वाला है वो ये है कि मार्केट्स माइट कंसोलिडेट बिटवीन 14,000 and 15,000 और माइट कंसोलिडेट बिटवीन 13,800 and 14,900. But they are not going to go back to 7,000, 8,000, 10,000, my friends. So stop expecting that. If you are looking to pile up some good stocks in the market, I have been saying from past few days, I have already piled up 18, 19, 20 different good stocks from the market in huge quantities. लॉकडाउन के टाइम पे भी मैंने पाइल अप किया था and that gave good returns. Now I'm again piling up because this is the time. ये consolidation phase या ये down phase हमेशा नहीं रहने वाला है. Once the markets will gain their strength, we can see Nifty moving forwards, and there will be a time when 15,000 would become a support. Right now it's a resistance. So you can just look at your favorite stocks, the blue chip stocks or even the penny stocks that you think have future, and you can start accumulating them. This is the right time as of now. So my overall view on the market is still bullish as of now. I am expecting Nifty to trade between 14,500 and 15,000 with huge volatility in tomorrow's trading session. To be more specific, 14,500 से लेके I would say that 14,900 I am expecting the Nifty to trade between. So let's see, we have to wait and watch till tomorrow. Now I'll quickly share the day's trading profile with you. We took the first trade in Nifty 14,900 call option. We did hit our stop loss and we just had a stop loss of 8 to 10 points, so that is very much fine. We lost approximately 600 rupees per lot in that trade, but then we took the Bank Nifty trade setup 33,000 put option, and this trade setup was after a long wait. In the second half we took this trade and successfully booked approximately 75 good points in this trade setup. The stop loss was really small, but the risk to reward ratio was very good, so we booked 75 points. And overall in terms of one lot size, अगर किसी ने एक lot के साथ भी trade किया है तो they must have booked more than 1,275 rupees or approximately 275 rupees in profits. My personal profits I've already shared on the group. Those were more than 50,000 rupees. मैं आपके साथ टेलीग्राम पे already share कर चुका हूं. But
इन जनरल अगर आपने एक लॉट के साथ भी आज ट्रेड किया होता, यू मस्ट हैव एंडेड इन ग्रीन. सो अप्रैल मंथ ऑफ अप्रैल इज गोइंग रियली गुड फॉर अस. वी हैव बीन सीइंग गुड प्रॉफिट्स फॉर द होल मंथ ऑफ अप्रैल. सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन में हमें लॉस बुक करने मिला है. अदर देन दैट अप्रैल इज गोइंग रियली गुड. लाइकवाइज मार्च वाज आल्सो गुड. मार्च में भी हमने सिर्फ 3 या 4 ट्रेडिंग सेशंस में ही लॉस बुक किया. सो इट्स अ गुड प्रॉफिट टू लॉस रेशियो बिकॉज वी know how to control our losses. That is the biggest power of any intraday trader. If you know how to control your losses, you can definitely earn money from the market, because the best power with the intraday trader is to control losses and trail profits. Maximize your profits and minimize your losses, and that's how you win as an intraday trader. Now we'll look into the charts. We will not look into the option chain data. क्यों नहीं देखेंगे ऑप्शन चेन डेटा में? क्योंकि ओआई डेटा नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद ज्यादा सेंस बनाएगा. इस समय इतना सेंस नहीं बनाएगा. तो अभी अगर हम बात कर लेते हैं, इंडिया विक्स हैज अगेन शॉट अप. इट इज बैक एट 20.40. दैट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन यस्टरडेज India VIX. It was below 20 yesterday. Now it's back at 20.4. Now let's have a look at how was the trading profile for the day in Nifty 50 index. Okay, yes, so here's Nifty 50 index. Let me quickly show you how our day looked like. So as I have been telling you, gap up opening के साथ open हुआ market. It immediately went up for the day. सो इट वेंट अप, फर्स्ट कैंडल में शूट अप कर गया और उसके बाद थोड़ी देर कंसोलिडेट करता रहा. उसके बाद इंडेक्स ने ट्राई किया 14950 का जो लेवल है उसको ब्रेकआउट करने का, नहीं कर पाया एंड स्टार्टेड फॉलिंग. देन टुक सपोर्ट इट टुक सपोर्ट वेरी ब्यूटीफुली एट दिस मार्क्ड लेवल. ये हमने ऑलरेडी लेवल मार्क करके रखा था. 14880 14890 का जो लेवल है वो हमारे पास मार्क था. वहीं कहीं जाके इंडेक्स ने सपोर्ट लिया और वहां से वापस ऊपर गया. हल्का सा रेजिस्टेंस फेस करके कहां पे 14925 के लेवल पे. मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट वर्क करते हैं. हियर इज द प्रूफ अगेन. यहां पे वर्क किया, कंसोलिडेशन दिखा एंड अगेन ट्राई टू मूव अप विद द सपोर्ट ऑफ मेटल स्टॉक्स इन द Nifty 50 index, but it could not move further up. यहां पे अगर आप देखेंगे, so the index faced some difficulty at the 14979 resistance. क्या आपको एक क्लियरली दिख रहा है रेजिस्टेंस मार्क्ड है? अगर आपके पास ये रेजिस्टेंस आपके चार्ट में मार्क्ड होता तो आप कितना ब्यूटीफुली इसको कैप्चर कर सकते थे इस मोमेंटम को. इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं, आपके साथ ये चार्ट्स भी लाइव मार्केट पे शेयर करता हूं, मार्क कर लीजिए इन लेवल्स को. सो इट टुक रेजिस्टेंस एट आवर मार्क लेवल दैट वाज 14979. पहले से ये लेवल मार्क्ड है. इट्स अ वेरी टफ रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी. सो इट केम back from there and it's continuously started falling. हल्का सा हॉल्ट किया वापस सपोर्ट पे and it fell again. हल्का सा अगेन हॉल्ट किया and then it fell again and हमारे नेक्स्ट सपोर्ट पे जाके 14847 का जो सपोर्ट जोन यहां दिख रहा है, यहां से रिवर्स करके 14877 के आसपास जाके इंडेक्स क्लोज हुआ है. सो एज यू कैन सी, this support was respected, this resistance was respected, again this support was respected, then this resistance was respected, then this support was respected, then this support was respected, then this support was respected. Every level is being respected. आपका ट्रेड सेटअप इन्हीं लेवल्स के बीच में बनता है. यही मैं आपको हर वीडियो में समझाने और सिखाने की कोशिश करता हूं. अगर हम सीपीआर की बात करें, सीपीआर बहुत नीचे था. ये हमारा सीपीआर जोन है. बाय द वे, सीपीआर के ऊपर अगर आपने मास्टर क्लास नहीं अटेंड करी हो तो वो भी कर लीजिए. इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग मास्टर क्लास, अमेजिंग लर्निंग फॉर यू. टुडे सीपीआर वाज ऑफ नो यूज क्योंकि उससे बहुत ज्यादा दूर ट्रेडिंग हो रही थी, बट देन आवर लेवल्स वर्कड वेरी वेल. दीज वर द लेवल्स एंड दे वर्कड वेरी वेल. कल के लिए अगर हम इंडेक्स में बात करें कि क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट जोन हो सकते हैं, तो मैं रेजिस्टेंस की पहले बात कर लेता हूं. First resistance index will face at R1. This is 14925. This is your first resistance. This is your second resistance R2, that is 14979. ये दोनों आपके कल के रेजिस्टेंस हैं, इनको मार्क कर लीजिए. कल इंडेक्स आपको यहां हॉल्ट करता हुआ दिख सकता है. सपोर्ट की हम पहले बात करते हैं. सपोर्ट आपको सबसे पहले इंडेक्स में कहां दिखेगा? आज के इंट्राडे लो पे, इंट्राडे लो आपका आज ये था. ये सपोर्ट आपका कल दिखेगा 14825 के लेवल पे. आपको कल पहला सपोर्ट इंडेक्स के लिए देखने को मिल सकता है. सो 14825 इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल लेवल फॉर यू फॉर टुमारो. अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो इंडेक्स कहां जाएगा ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं अभी. यस, सो इफ दिस सपोर्ट ब्रेक्स, लेट मी शो यू 1 सेकेंड. Okay, yes, let me do one thing for you. Let me just darken this line for you. This is a very light line over here. मैं इसको dark कर देता हूं. 1 second. Okay, yes, so this is going to be another crucial support for the index. मैं यहाँ पे इसको dark कर दिया हूं लाइन को.
सो सपोर्ट नंबर 1 वुड कम अराउंड एट दिस लेवल, जिसको मैंने मार्क करके नहीं रखा है बिकॉज दिस इज इंट्राडे लो. सो 14,825 इज योर सपोर्ट 1 फॉर टुमारोज ट्रेडिंग सेशन. सपोर्ट 2 विल बी सीन एट 14,764. जस्ट इन केस अगर ये सपोर्ट 2 ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद आपको इंडेक्स कहां गिरता हुआ दिखेगा, उसके बाद आपको इंडेक्स गिरता हुआ दिखेगा सीधे 14,677 के लेवल पर. ठीक है, 14,677. लेट मी मार्क दीज लेवल्स फॉर यू सो इट वुड बी इजियर फॉर यू टू ट्रेड टुमारो. ये देखिए, ये आपको दिख रहा है यहां पे. 1 second. Yes. So this is your level. This is your level. This is your support 1. This is your support 1. Support 1 is 14,987 and तकरीबन 14,800 के आसपास आपको पहला सपोर्ट जो है इंडेक्स का मिलेगा. सपोर्ट 2 आपको मिलेगा 14,764 के आसपास और मेजर सपोर्ट आपको मिलेगा जो सपोर्ट 3 है वो मिलेगा 14,677 के आसपास. ये तीनों सपोर्ट्स हमने आपके लिए मार्क करके रख लिए हैं. रेजिस्टेंस कहां था? रेजिस्टेंस 1 14,925 एंड रेजिस्टेंस 2 14,979. ये आपके दो रेजिस्टेंस हो गए. तो ये आपकी कंप्लीट कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स क्लियरली मेंशन हो गए. नाउ वी विल टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी इंडेक्स. बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात कर लेते हैं. सिमिलर टू द निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स भी बहुत वोलेटाइल था. फर्स्ट हाफ के बाद से ज्यादा वोलेटाइल था. अगर हम बैंक निफ्टी इंडेक्स में बात करें, गैप अप ओपनिंग, यस वी सॉ गैप अप ओपनिंग, अगेन अ बुलिश कैंडल, बट द रेजिस्टेंस वाज रिस्पेक्टेड वेरी ब्यूटीफुली. कैन यू सी दिस वाज अ प्री मार्क्ड रेजिस्टेंस. आज हमने कुछ भी मार्किंग नहीं करी है चार्ट्स के अंदर. सो रेजिस्टेंस दिस वाज 33,297, ब्यूटीफुली रिस्पेक्टेड, केम बैक, टुक सपोर्ट. कहां लिया सपोर्ट? फिर से देखो, सपोर्ट यहां पे लिया है. फिर से देखिए सपोर्ट का लेवल क्या है? 33,042. क्या ये हमारे पास मार्क्ड है? बिल्कुल मार्क्ड है. तो अगर आपके पास रेजिस्टेंस और सपोर्ट मार्क्ड है तो क्या आप इनके बीच में अपना ट्रेड सेटअप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप फोकस करें तो. ठीक है, सो इट टुक सपोर्ट एट 33,042. इट अगेन वेंट बैक अप, took the resistance from the same level and slowly started falling down for the whole day. Then it started going up, took support from CPR zone. यहां पे CPR available था हमारे पास इंडेक्स में. It approximately took support from the CPR zone, then went back up and finally took resistance from this level. 33,192 का लेवल भी हमारे पास मार्क्ड है. यहां से रेजिस्टेंस लेके इंडेक्स जब गिरना चालू हुआ, हमने अपना बैंक निफ्टी में पुट ऑप्शन का ट्रेड सेटअप कब किया? इस पे जरा फोकस करिएगा. हमने तब किया जब हमारा ये 33,042 का सपोर्ट दूसरी बार ब्रेक हुआ. यहां पे आपको तीसरी बार ब्रेक हुआ, इनफैक्ट सॉरी, तीसरी बार ब्रेक होने की कोशिश हुई. पहली बार यहां पे कोशिश हुई थी, दूसरी बार यहां कोशिश हुई और उसके बाद तीसरी बार यहां जब कोशिश हुई तो हमने इस कंफर्मेशन कैंडल के साथ हमने एक ट्रेड सेटअप किया, स्टॉप लॉस को यहां कहीं रखते हुए, और हमने एक ट्रेड सेटअप किया 33,042 के लेवल से और कंप्लीटली इस पूरे सपोर्ट तक के मोमेंटम को कैप्चर किया. क्या आप देख सकते हैं इस सपोर्ट से इंडेक्स वापस ऊपर गया था, उसके बाद नीचे आया, वो बात की बात है. हमें हमारे अगर टारगेट पता है तो हमें सिर्फ इतना जोन कैप्चर करना है, फ्रॉम दिस सपोर्ट ब्रेकडाउन टू दिस सपोर्ट. बस सपोर्ट 1 से सपोर्ट 2 का ब्रेकडाउन हमने कैप्चर कर लिया. इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन बोलते हैं. ठीक है, इस ब्रेकडाउन के ऊपर या ब्रेकआउट के ऊपर हम पूरी मास्टर क्लास आपके लिए बना चुके हैं. जस्ट इन केस अगर आपने अभी तक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की मास्टर क्लास नहीं अटेंड करी हो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड आई लीव इन एडिट टू द कार्ड्स ओवर हियर. जाके अटेंड कर लीजिए. इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स वर्क वेरी ब्यूटीफुली. कल के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, इंडेक्स को पहला रेजिस्टेंस अगेन वहीं कहीं फेस करना होगा 33 रेजिस्टेंस 1. I'll mark it as रेजिस्टेंस 2. मैं आपको रेजिस्टेंस 1 बताता हूं, कहीं और है. Resistance 2 is 33,042. Resistance 1 is this level. Resistance 1 is this level. Approximately you can say 32,950 levels would be your resistance 1. ठीक है, अगर ये दोनों रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होते हैं तो आपको इंडेक्स जाता हुआ दिख सकता है हमारे आज के इंट्राडे हाई तक, दैट वाज 33,297. यहां आपका रेजिस्टेंस 3 है. तो ये आपके तीनों रेजिस्टेंस कल के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स के मार्क हो चुके हैं. सपोर्ट की अब हम बात कर लेते हैं. सपोर्ट जोन वो है जहां पे जाके इंडेक्स हॉल्ट कर सकता है ऑन द लोअर साइड. तो सपोर्ट की हम बात करते हैं. गिव मी 1 सेकंड, लेट मी एडजस्ट द चार्ट्स फॉर यू. यस, ओके. सो सपोर्ट जोन अगर हम देखें कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए इंडेक्स के लिए, सो द बिग सपोर्ट्स विल कम, 1 सेकंड, लेट मी टर्न ऑफ दिस. ओके, सो द बिग सपोर्ट विल कम एट, सपोर्ट 1, फर्स्ट सपोर्ट विल कम एट 32,598 लेवल. यहां आपको पहला सपोर्ट मिलेगा और सपोर्ट 2 आपको मिलेगा 32,357 के लेवल पे. ये आपका सेकंड सपोर्ट रहेगा. ये दोनों आपके सपोर्ट जोन्स हो गए बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए. रेजिस्टेंस की बात हम ऊपर कर चुके हैं. जस्ट इन केस अगर ये 32,357 का सपोर्ट भी ब्रेक होता है तो फिर आपको 32,000 का लेवल भी देखने मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी इंडेक्स थोड़ा सा बेयरिश लग रहा है. इट्स लुकिंग वीक एज ऑफ नाउ. ठीक है,
So this is the whole story for the Nifty 50 and the Bank Nifty index. Now what I want you to do is go through the video once again. अगर आपको ये वीडियो में कोई भी क्वेश्चंस हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आपके क्या लेवल्स हैं आप जाके कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं मेरे साथ. हो सकता है आपने कुछ ऐसे लेवल्स मार्क कर रखे हो जिनको मैं मिस आउट कर गया हूं. दोस कैन बी इंपॉर्टेंट लेवल्स, या आपके पास हो सकता है कोई ऐसी ग्लोबल न्यूज या लोकल न्यूज अपडेट हो जिसके कारण मार्केट्स में कोई इफेक्ट आ सकता है. सो यू आर मोस्ट वेलकम टू गो डाउन इन द कमेंट्स बिलो एंड शेयर योर थॉट्स विद दिस रोरिंग बुल्स कम्युनिटी. दिस कम्युनिटी इज मेड अप ऑफ हाईली चार्ज्ड एंड enthusiastic people who are willing to share their experience and their knowledge. So be a part of this amazing community. Give your thoughtful comments down in the comment section below. सारी मास्टर क्लास, बोनस मास्टर क्लास जो है वो सभी सभी मेंबर्स के लिए फ्री में, रोरिंग बुल्स के सभी जनरल टेलीग्राम मेंबर्स के लिए भी और जनरल यूट्यूब मेंबर्स के लिए भी फ्री में अवेलेबल हैं. डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक है, उनको अटेंड कर लीजिए. अगर आप एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास अटेंड करना चाहते हैं, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग रेड सर्कल कम्युनिटी वेयर वी शेयर एवरीथिंग रिलेटेड टू द मार्केट इन द इंट्राडे मार्केट, एंड दैट हेल्प्स you to understand the levels as well. Now another request to you is, if you are an intraday trader and if you are comfortable to trade manually का मतलब होता है कि आप अपने हाथ से सेल और बाय ऑर्डर्स प्लेस करते हैं. It would be a great thing to do because at times in high volatile markets there are chances कि आपका stop loss hunt होके market वापस reverse कर जाए. That's what happened in the third trade setup for the day. Third trade setup में हमारी buying level 50 पे था और हमारा stop loss level 35 पे था. It was a matter of microseconds for the people जिन्होंने limit orders लगा रखे होंगे. The index touched the level of 34.85. 15 पैसा डाउन आर स्टॉप लॉस एंड इमीडिएटली रिवर्स विद इन माइक्रोसेकेंड्स. यहां अगर आपका मैनुअल स्टॉप लॉस होता तो आप इस चीज से बच सकते थे, बिकॉज इन वोलेटाइल मार्केट्स मैनुअल स्टॉप लॉस आर मच बेटर, क्योंकि वोलेटिलिटी में मार्केट्स क्विकली रिवर्स करते हैं. दैट्स व्हाट आई मीन टू से हियर. इन अ ट्रेंडिंग मार्केट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ जीटीटी ऑर्डर और अ लिमिट ऑर्डर. दैट्स वेरी हेल्पफुल इन अ ट्रेंडिंग मार्केट, बट जहां वोलेटिलिटी ज्यादा है वहां आप मैनुअल स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं. So this is what I was talking about. We took a third trade setup. It was a kind of zero to hero trade setup because we bought the option for just 50 rupees and it shot up to 95 rupees. Almost double profit हुआ जितने भी लोग manually trade कर रहे थे उन सभी लोगों को. So congratulations to all Red Circle members for booking profits for the day, and everyone else is also most welcome to be a part of this amazing community. Don't forget to subscribe to this channel Roaring Bulls. This is one of the most amazing channel for you on YouTube, जहां आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं इंट्राडे मार्केट के बारे में और स्टॉक मार्केट के बारे में, कैसे आप स्टॉक मार्केट की दुनिया में पैसा बना सकते हैं. इस चीज के बारे में एक अच्छा क्वालिटी डिसेंट नॉलेज आप एक्वायर कर सकते हैं. एंड एज अ इंट्राडे ट्रेडर आई एम अ वेरी ओपन ट्रेडर, आई एम अ वेरी ट्रांसपेरेंट ट्रेडर. आई शेयर माई प्रॉफिट्स एज वेल एज माई लॉसेज विद एवरी सिंगल पर्सन हु इज देयर on my Roaring Bulls community. I'm not afraid to hide my losses because, as I have told you, losses are part of trading business. No business in this universe, no business in this world can come without any cost. आपको recurring cost हर business की आएगी. तो अगर ट्रेडिंग की दुनिया में हम ट्रेडिंग को बिजनेस मानते हैं अगर, तो उसमें आपकी क्या कॉस्ट है? ऐसा देखा जाए तो कोई ऐसी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है अदर देन द ब्रोकरेज फीस एंड द इंटरनेट कनेक्शन. कोई ऐसी कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है. कॉस्ट इन्वॉल्व है आपके स्टॉप लॉस की. सो लर्न टू रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस एंड लर्न टू गिव योर स्टॉप लॉस इफ नीडेड. ओके, एंड टारगेट्स को भी रिस्पेक्ट करें. द मोर यू विल स्टे डिसिप्लिन्ड, द मोर विल बी द चांसेस दैट यू विल अर्न अ डिसेंट इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट. एंड आई होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो. आपको पसंद आया हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को और लाइक जरूर कर दीजिएगा. आपके लाइक से मिलता है मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन, एंड मोटिवेशन इज द ओनली की ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड every good thing in this world. So I am hoping that you will join the Roaring Bulls Red Circle community very soon. This is Utkarsh Bhargav. You're watching Roaring Bulls, the stock market show.